Hello students, we had discussed in previous lecture about the animal husbandry. Animal husbandry को define किया था हम लोगों ने. Then we discuss about the few aspects of the animal husbandry, and the most important we discuss about the inbreeding. Inbreeding, it was the cross between mating between the same breed for 4 to 6 जनरेशन. ठीक है ना, याद है आप लोगों को. और मैंने बोला था इनब्रीडिंग जब भी होगी, इनब्रीडिंग में नंबर 1 सिलेक्शन, नंबर 2 एलिमिनेशन, नंबर 3 होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस एंड नंबर 4 प्योर लाइन का मिलना. ठीक है ना. इफ वी कंटिन्यू द इनब्रीडिंग फॉर मेनी जनरेशन, मोर देन 6 जनरेशन, देन the defect was caused and that defect was called as inbreeding depression. ठीक है ना. फिर हम लोगों ने outbreeding पढ़ा था. outbreeding में पहला पढ़ा था outcrossing. what was outcrossing? Here the cross was made between the same breed but their ancestors were not common for 4 to 6 generation. उनके प्रोडक्ट को हमने outcross बोला था and it is the best method to overcome what? inbreeding depression. फिर हम लोगों ने था क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ा था हम लोगों ने. क्रॉस ब्रीडिंग में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हियर द क्रॉसिंग इज मेड बिटवीन द 2 डिफरेंट ब्रीड्स. 2 डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे. ठीक है ना. और डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में हुई. एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे, अगर आपको याद हो, Merino Rams with Bicaneri Aves. One is exotic breed, one is desi breed, and their result was Hisardale. उनका result क्या था? Hisardale था, and it was developed in Punjab. Hisardale, a new breed of sheep. Then we study about the interspecific hybridization. Interspecific hybridization में we make the cross between different species. यहाँ species ही अलग हो गई. For example, a cross between the female horse and the male donkey, mules produce हुए थे. Reciprocal cross में hinnies produce हुए थे. Then we discuss about the control breeding experiment. Control breeding experiment, and the first experiment was artificial insemination. In this what happened? There was the selection. किसका selection? Of elite bull or superior bull. There was the collection of the semen. There was the collection of the semen from the elite bull, and that collected semen is directly injected into the female genital tract. Okay, and we get the desired progeny, and that female is also a superior one, so we get the desired progeny at a time. Then there was the second method that we can store this semen in liquid nitrogen, a very low temperature, minus 196 degrees centigrade. You study about that. So we store this semen for the long period. In low temperature the enzymes become active, so there is no harm to the semen, and whenever it is required we can use it easily. Okay, then the final technique I make you understand, it was MOIT, multiple ovulation embryo ट्रांसफ़र टेक्निक. इसमें क्या था? हर्ड इम्प्रूवमेंट. अगर हमको हर्ड इम्प्रूवमेंट करना है, ग्रुप में इम्प्रूवमेंट करना है कैटल्स में, तो वो बेस्ट होता है. कैटल्स में हो सकता है, रैबिट्स में हो सकता है, गोट में हो सकता है, शीप में, सब में ये इम्प्लीमेंट रहती है ये टेक्निक. अब इसमें हम लोगों ने क्या किया था? सपोज वी टोक अ गुड ब्रीड ऑफ काउ, तो इन दैट काउ वी इंजेक्ट अ हार्मोन FSH, doing the FSH like activity. When FSH introduced into the female, the follicular activity increases. When follicular activity increases, it causes super ovulation. Super ovulation cause हो गया था, और जब super ovulation cause हुआ तो instead of one egg in a single ostrus cycle, how many eggs were produced? 6 to 8 eggs were produced. Now when the eggs are produced, it is followed by either by the artificial insemination or by the crossing with some elite bull. Elite bull means superior bull. In both of the cases the eggs get fertilized. Now these fertilized eggs are allowed to grow for 8 to 32 cell stage. Okay, NCERT data, 8 to 32 cell stage, and after this they are taken out unsurgically. They are removed unsurgically, and each fertilized that embryo stage is inserted into the other female cow, and those cow were called as surrogate mother. So suppose we have the 8 fertilized eggs or the embryo, so how many progeny will get at a time? We will get 8 progeny at a time. So this technique is important for the herd improvement. I have told you before also, ये technique herd improvement के लिए ज़रूरी है. वो कोई भी animal हो सकता है, cow हो सकते हैं, buffaloes हो सकते हैं, sheep हो सकती है, goat हो सकते हैं, rabbit हो सकते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था. क्लियर हुआ आपको? अब कुछ ब्रीड्स की बात हम कर रहे हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर एनिमल लिया,
sheep. देखिए आपके बुक में हो सकता है इससे ज़्यादा एग्जाम्पल दिया हो, but you just remain here, but just you remember these example, they are more than sufficient. Okay, so first we took the animal. It is a sheep. It is a sheep, and its biological name, its scientific name is Ovis aries. Scientific name is Ovis aries. So the animal is sheep. So the animal is sheep, and its scientific name is, biological name is Ovis aries. Here 1 2 3 4 5 6 they are the breeds of the sheep. ये breeds है sheep की, जिसमें सबसे पहले मैंने कौन सी ली? पठानवाड़ी. First one is पठानवाड़ी. It is a breed of the Gujarat. It is a breed of the Gujarat, and it is its wool is important for the प्रोड्यूसिंग द आर्मी हॉजरी. आर्मी हॉजरी जो बनती है वो मेनली इसी के वूल से बनती है, तो पठानबाड़ी आप याद रखेंगे. सेकेंड ब्रीड इज लोही. सेकेंड ब्रीड ऑफ sheep is लोही, and it is mainly the breed of Rajasthan and Punjab. It is mainly the breed of Rajasthan and Punjab, and it is known for producing good quality of wool. It is known for producing good quality of wool. क्लियर हुआ? ये एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी दिए हैं, आप उसमें टिक करते चलिए. कुछ इंपॉर्टेंट होता है अगर मैं देता हूँ उसको साथ में नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज बस इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है. नेक्स्ट द एग्जाम्पल इज नाले. नाले एग्जाम्पल इज, एंड इट इज द ब्रीड ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. It is mainly the breed of Haryana and Punjab, and it is known to produce superior carpet wool. It is known to produce superior carpet wool. Now comes the Dakini. This Dakini, it is the breed of the Karnataka. First of all, it is the breed of the Karnataka, and it do not have any concern with wool production. No wool production. No wool. No wool. It do not produce a wool, but it is known to produce a meat, and meat is mutton. It is known to produce a good quality of mutton. So please remember the Dakini. Now these two names 5 and 6, they are the important one. Dorset Horn and Merino. Dorset Horn and Merino. So Dorset Horn and Merino, first of all, they are exotic breed. First of all, they are exotic breed, and these two breeds are reared for meat production. These are reared for meat production. They are for the meat production. So these are the important, I am repeating again, important breeds of the sheep in your book. Maybe other also given, but you just remember this 5-6 name. They are more than sufficient. Okay, again, Pathanwadi, Lohe, Nali, Dakini, Dorset Horn and Merino. These last two are important because they are exotic breed. बाहर की breed है, इंडिया की breed नहीं है. और ये जो मैंने ऊपर की जो लिखी हुई है, ये कैसी breed है? Indigenous breed है, देसी breed है. 1 to 4 देसी breeds and 5-6 exotic breed. Okay, and this is not for meat production and for the wool production. So this is all about the sheep breed. Okay, am I clear? Okay, now coming to the next one. Next animal, it is goat. Goat. The biological name is Capra capra. Again, here are the few examples of goat. They are mentioned in your book. What is not mentioned, you please उसी बुक में अपनी कॉपी में प्लीज उसको आप करेक्ट करते जाइएगा. अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल इज गड्डी, एंड दिस गड्डी इज बिलोंग टू, कहाँ की ब्रीड है? इट इज अ ब्रीड ऑफ हिमाचल प्रदेश. The second one is Kashmiri goat. This one is important. Kashmiri goat is important because first of all the breed is found in Kashmir and Tibet. The कश्मीर में पाई जाती है, तिब्बत में पाई जाती है, और ये जानी जाती है किस लिए? प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट फाइबर्स ऑफ पश्मीना. दे आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट फाइबर्स ऑफ पश्मीना. बहुत सॉफ्ट फाइबर प्रोड्यूस करते हैं पश्मीना का, ठीक है ना, एंड वेरी कॉस्टली फाइबर. सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट गोट, कश्मीरी गोट. Okay, they are the breeds of the Kashmir or the Tibet, and they are known to produce a very soft fibers of pashmina. ठीक है ना. अगर आप
In future if you visit to Kashmir, तो पश्मीना वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर, पश्मीना शॉल्स, पश्मीना स्वेटर्स वगैरह वगैरह वहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे मैंने बताया। अब नेक्स्ट ब्रीड जो आई गोट की, उसको मैंने क्या नाम दिया, बीटल क्या नाम दिया, बीटल नाम दिया है। अब बीटल ब्रीड कहाँ की है, पंजाब की। बीट कहाँ की है, पंजाब की है। तो इट इज़ reared for obtaining the meat. So these breeds, they are mainly reared for obtaining the meat, and the meat of the this sheep or the goat, it is called as mutton. It is called as mutton. Okay. So next last breed of goat, it is Marwadi. It is Marwadi, and this Marwadi, it is the breed of mainly Rajasthan. It is mainly the breed of Rajasthan, and it is also reared for production of meat. It is also reared for production of meat. So here the important one, Kashmiri goat. I am repeating here, Kashmiri goat is important because it produces a very soft fibers of pashmina, a very soft and known and very precious one. They are very costly, precious one. Okay, so they are the important fibers, pashmina fibers obtained from the Kashmiri goat. So these are the example which you have remember with respect to the goat. With respect to the goat. Okay. Now comes the next topic. Look here. Now comes the next topic. It is poultry. Next topic, it is poultry. Poultry क्या है? तो आप बोलेंगे it is the rearing of, it is a rearing of birds. It is a rearing of birds to obtain. It is a rearing of birds to obtain what? To obtain eggs and meat. ये हुआ rearing of birds to obtain egg and meat is a poultry. It's a poultry. Okay. It is the poultry. Now see, पोल्ट्री बर्ड्स को रियर करना, किस लिए रियर करना? टू ऑब्टेन, बर्ड्स को रियर करना किस लिए? टू ऑब्टेन एग्स एंड द मीट, ठीक है ना। इट कम अंडर द सेक्शन ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। अब पोल्ट्री फार्मिंग हमको स्टार्ट करनी है, तो पोल्ट्री फार्मिंग ये एनसीईआरटी का पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। वी हैव टू स्टार्ट द पोल्ट्री फार्मिंग। सो व्हाट आर द कंसेप्ट टू स्टार्ट द पोल्ट्री फार्मिंग? कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? तो नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको सिलेक्शन करना है किसका? सुटेबल प्लेस का। फर्स्ट ऑफ ऑल सुटेबल प्लेस। सुटेबल प्लेस मीन्स इट शुड बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, इट शुड बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, ये प्रॉपर वेंटिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। हाइजीनिक होनी चाहिए, इट मस्ट बी अ हाइजीनिक, इट मस्ट बी अ क्लीन, ठीक है ना। तो ये प्लेस को हम लोगों ने यहाँ पर हमने बोला कि selection of the suitable place, it is the first aspect of poultry. The place must be proper ventilated, hygienic, it must be hygienic and the very much clean. Okay, now comes after selection of the place, now comes कि now we have to select a suitable breed. Now we have to select the suitable breed. We have to select the suitable breeds of bird. और क्यों हम उनको रियर कर रहे हैं, उसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। वी, ठीक है ना, हम रियर करेंगे किसके लिए? या तो एग्स प्रोडक्शन के लिए या फिर करेंगे किसके लिए? मीट प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसी बर्ड्स जिनको हम रियर करते हैं एग प्रोडक्शन के लिए, तो दे आर कॉल्ड लेयर्स। इनको हम किस नाम से जानते हैं? लेयर्स। देखिए फिर से सुनिए, ऐसी ब्रीड्स बर्ड्स की जिनको हम रियर कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, किस लिए? टू ऑब्टेन द एग्स, इट इज कॉल्ड एज लेयर्स, इट इज कॉल्ड एज लेयर। एंड the breeds of the birds which are reared to obtain meat, they are called as broilers. They are called as broilers. इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर्स बोलते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? ब्रॉयलर। तो 2 वर्ड इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कस करे, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कस करे। वन इज लेयर्स एंड सेकंड वन इज ब्रॉयलर। वंस अगेन, द बर्ड्स हु आर reared to obtain eggs, they are called as layers. They are called as layers. And the birds who are reared to produce meat, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव है कि हमको उनसे मीट लेना है, तो उनको बर्ड्स को हमने कैटेगरी क्या दी है? ब्रॉयलर। क्या नाम दिया हम लोगों ने?
ब्रॉयलर। क्लियर हुआ है यहाँ पे? तो सबसे पहले हमने सिलेक्शन किया सुटेबल प्लेस का, एनसीईआरटी बात कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी के सुटेबल प्लेस में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। सेकेंडली जब प्लेस हमने सिलेक्ट कर ली तो अब आता है कि हमको सिलेक्शन करना है किसका, सुटेबल ब्रीड का। किसका करना है, सुटेबल ब्रीड का करना है। कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको वहाँ पे एग प्रोडक्शन करना है या मीट प्रोडक्शन करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सो द बर्ड्स हु आर reared to obtain eggs, they are called as layers, they are called as layers, and the birds who are reared to obtain meat, they are called as broilers, they are called as broilers. So these are 2 points. I hope you have that clear idea. First is selection of the place, and second one, it is a suitable breed. Okay, above all, then there should be a proper feed, there should be a proper arrangement of the feed. ठीक है ना, अनलेस द देयर इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द फीड, ठीक है ना, वी कैन नॉट मेंटेन द गुड हेल्थ ऑफ द बर्ड. सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द फीड, एंड दिस फीड शुड बी, इट शुड बी रिच इन प्रोटीन. ये फीड हमारा जो हम दे रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी रिच इन प्रोटीन. तो यहाँ प्रोटीन रिच डाइट हमको यहाँ पे प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है ना. एंड देयर शुड बी ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वाटर, देयर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट कम्स द हेल्थ केयर. देखिए आप पोल्ट्री कर रहे हैं या आप फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं. अगर फार्म मैनेजमेंट कर रहे होते तो पोल्ट्री की जगह मैं कैटल मैनेजमेंट कर देता. बात यही है, सब जगह यही चीज़ें होनी है. सिलेक्शन ऑफ द राइट प्लेस, सिलेक्शन ऑफ द राइट ब्रीड, देन सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर फूड फॉडर, ठीक है ना, एनीथिंग, सिलेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द प्रॉपर वाटर, क्लीन वाटर, हाइजीनिक वाटर, ये सारी चीज़ें सब में होंगी. देन कम्स द हेल्थ केयर, देन कम्स द हेल्थ केयर. सो प्रॉपर हेल्थ केयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना. देयर शुड बी अ फैसिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन, एंड फॉर वैक्सीनेशन देयर मस्ट बी अ विजिट ऑफ veterinary doctor. There must be a visit of veterinary, it's veterinary doctor. There must be a regular visit of veterinary doctor. So there must be a visit of veterinary doctor for maintaining the proper the health of animal. ठीक है ना, वो बर्ड्स हो या कैटल्स हो, कोई भी हो, वो ज़रूरी है कि वहाँ पे रेगुलर विजिट होनी चाहिए. किसकी, वेटनरी डॉक्टर की विजिट होनी चाहिए. नाउ कम्स इंडिजीनियस. कुछ इंडिजीनियस मीन्स देसी ब्रीड की बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ देसी ब्रीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे बर्ड्स की, जिसको हम रियर्ड करते हैं जो है उसमें नंबर वन इज असील, and this asil is known for cockfighting. This asil is known for the cockfighting. The second one is Brahma, third is Gagas, and fourth is Karaknath. So these are the indigenous breeds. Indian breeds हैं, देसी breeds हैं. तो हमने बोला indigenous breeds होती हैं. indigenous breed जो देसी breed हैं, असील के साथ याद रखिएगा, they were used for the cockfighting. पहले ज़माने में कॉक फाइटिंग होती थी, ठीक है ना, अब भी कहीं कहीं होती है बट रेयर है. बट कॉक फाइटिंग के लिए ये बेस्ट ब्रीड होती थी. ब्रह्मा, गागस, कारकनाथ देसी ब्रीड्स हैं, यहीं की ब्रीड है, ये हो जाता है. नाउ कम्स द सेकेंड वन, द एग्जॉटिक ब्रीड. दिस इज एग्जॉटिक ब्रीड. एग्जॉटिक ब्रीड मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ऐसी ब्रीड जो इंपोर्ट करी गई है, बाहर की ब्रीड है, अपने इंडिया की ब्रीड नहीं है. उन ब्रीड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, एग्जॉटिक ब्रीड. क्या नाम दिया है, एग्जॉटिक ब्रीड. और एग्जॉटिक ब्रीड में ये इम्पोर्टेंट है आपका वाइट लेग हॉर्न. क्या हुआ, वाइट लेग हॉर्न. और ये वाइट लेग हॉर्न किस कैटेगरी में आता है, ये आता है किसमें, लेयर में. और लेयर मैंने क्या बताया था, ऐसे बर्ड जो रेयर करते हैं हम किसके लिए, एग प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना. क्योंकि देखिए इंडिया में जो एग का प्रोडक्शन है ना वो बहुत लेस है. अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 एग्स पर ईयर की हम बात करते हैं. लेकिन अगर हम एग्जॉटिक ब्रीड की बात करते हैं तो मोर देन 200, अप्रॉक्सीमेटली 200 और मोर देन 200 एग्स आर प्रोड्यूस्ड in a single year. So there is the huge difference in productivity. So here once again exotic breed white leghorn, it belongs to category of layer. किसको belong करता है, layer को. और layer वो category होती है birds की जिसको हम rear करते हैं, किस लिए, for the production of eggs. clear हुआ है यहाँ पे. Second important breed is plymouth. Second example is a plymouth, and plymouth belongs to broiler. और ब्रॉयलर मैंने क्या बताया था, ऐसी बर्ड्स जिसको हम रेयर करते हैं किसके लिए,
for the production of meat, for the production of meat. Objective is to obtain the meat. ऐसी birds को हमने क्या नाम दिया है? Broiler. And plymouth is the very good example for the primer. Beside here so many birds are there. Hampshire is there, New Hampshire is there, ठीक है ना, Sussex is here, ठीक है ना. तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में? पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बताया. एनसीईआरटी का पार्ट है. फिर से देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन कि व्हाट इज पोल्ट्री. तो व्हाट इज पोल्ट्री? तो इट इज द रेयरिंग ऑफ द बर्ड्स. इट इज द रेयरिंग ऑफ द बर्ड्स टू ऑब्टेन एग्स और द मीट. टू ऑब्टेन एग्स और द मीट. तो एग्स और मीट को ऑब्जेक्टिव है और वो किस में आया? अपना पोल्ट्री में आ गया. अब पोल्ट्री मैनेजमेंट में अगर हम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया देयर मस्ट बी अ सुटेबल प्लेस. फर्स्ट वी विल सिलेक्ट द सुटेबल प्लेस. सुटेबल प्लेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे. वो प्लेस कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर वेंटिलेटेड होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए. इट शुड बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, इट शुड बी अ हाइजीनिक वन एंड इट शुड बी अ clean one. Environment should be a clean one. Secondly, after the selection of the place, now comes selection of the breed. अगर सिलेक्शन कर लिया, अच्छा ब्रीड अच्छी नहीं ली, तो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा. तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको सिलेक्ट करना है किसको? एक अच्छी ब्रीड को सिलेक्ट करना है, बर्ड्स की ब्रीड को सिलेक्ट करना है. अब बर्ड की ब्रीड हम सिलेक्ट करेंगे किसके बिहाफ पे? दो ऑब्जेक्टिव. या तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. या फिर हम उन्हें क्यों रेयर कर रहे हैं? टू ऑब्टेन द मीट. तो ऐसी बर्ड्स जिनको हम रेयर कर रहे हैं किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स. They are called as layers. And all those birds who are being reared for the production of meat, they are called as broilers. उनको हम क्या बोलते हैं? broilers नाम देते हैं. तो ये आप यहाँ रखेंगे. Then that next objective of the poultry management includes proper feeding. जो फीडिंग होनी चाहिए प्रोटीन रिच होनी चाहिए. देयर मस्ट बी ए प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ वाटर. ठीक है ना. देयर मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर. हेल्थ केयर के लिए हमको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है. और हेल्थ केयर फॉर एग्जांपल द प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ द एनिमल. एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन के लिए हमको देयर मस्ट बी ए रेगुलर विजिट ऑफ वेटरनरी डॉक्टर. वेटनरी डॉक्टर की प्रॉपर क्या होनी चाहिए? वहाँ पे विजिट होनी चाहिए. तो ये आपको मैंने यहाँ पे बताया. लास्ट मैंने आपसे डिस्कस किया एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पे ग्रीन से जो मार्क करे हैं मैंने, इंडिजिनस ब्रीड, देसी ब्रीड्स की बात करी है. असील की बात करी है. असील यूज फॉर द कॉक फाइटिंग. इट इज मेनली यूज फॉर द कॉक फाइटिंग. ब्रह्मा, गैगस, कारकनाथ देसी ब्रीड्स हैं. यहाँ इंडिया की ब्रीड है. दो इंपॉर्टेंट ब्रीड मैंने तीन यहाँ पे बताई हैं. एक्सोटिक ब्रीड. एक्सोटिक मीन्स हु हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, दे डू नॉट बिलोंग्स टू इंडिया. ओके, एक्सोटिक ब्रीड बाहर से कहीं से आई है. उसमें इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिएगा. व्हाइट लेग हॉर्न. एंड व्हाइट लेग हॉर्न बिलोंग्स टू लेयर. व्हाइट लेग हॉर्न बिलोंग करेगा किसको बिलोंग करेगा? लेयर्स को बिलोंग करता है. White leghorn belongs to layer. Layer means the birds are reared for the production of eggs. Birds who are reared for the production of egg. Clear? दूसरा plymouth. It is also important one because it is the example of broiler. Broiler, the category of bird who had been reared for the production of meat. So it is a, ये आपको याद रखना है. प्लाईमाउथ, स्यूसेक्स याद कर लिएगा. और भी आपके बुक में एग्जांपल है, आप पे उसको आप याद कर सकते हैं, बट ये तीन को नहीं भूलना है आपने. व्हाइट लेगहॉर्न, प्लाईमाउथ और स्यूसेक्स. क्लियर हुआ है यहाँ पे. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोल्ट्री मैनेजमेंट, एग्जांपल्स ऑफ द पोल्ट्री. ठीक है ना. तो यहाँ पर 4 + 3 7 एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर हियर. तो ये आपका कंप्लीट होता है किसके बारे में? पोल्ट्री के बारे में. ठीक है ना. नाउ कम्स द अनदर वन. Now see, next topic is poultry disease. Poultry business or the poultry farming is always threat to a number of diseases. डिजीज़ का बहुत बड़ा थ्रेट रहता है वहाँ पे. तो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर. सबसे पहले जो डिजीज़ मैंने ली, द नेम ऑफ द डिजीज़ इज फाउल पॉक्स. Name of the disease is fowl pox, and this fowl pox is caused. देखिए the name ये आपकी बुक में दिया है, कुछ चीज़ें आपकी बुक में नहीं दी है, तो प्लीज़ साथ में नोट कर लीजिएगा आप लोग. So fowl pox, it is written in your book. Okay, it is written, but what is not written? That it is caused by
एविपॉक्स वायरस। कौन क्या किससे कॉज होता है? तो वायरल डिजीज हो रही है, इट इज कॉज बाय एविपॉक्स वायरस। अब इसमें होता क्या है? सिम्टम्स। नाउ कम्स द सिम्टम। क्या सिम्टम होते हैं? तो ज़्यादा नहीं, ब्रीफ में रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। रेस्पिरेशन रेट जो हो रहा है वो क्या करता है? बढ़ जाता है। द रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस विद लेशंस इन GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लेशंस, घाव हो जाते हैं, इवन रेस्पिरेटरी पैसेज में घाव हो जाते हैं, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि ट्रीटमेंट के लिए हम क्या प्रोवाइड कराएंगे? वैक्सीनेशन। किसको? अडल्ट को नहीं कराएंगे, 1 से 2 दिन के चिक्स को हम क्या करते हैं? वैक्सीनेशन क्या करते हैं? देते हैं। अगर ये डिजीज कॉज हो गई, प्लीज देखिएगा, अगर फाउल पॉक्स हो गया, ठीक है ना, तो ठीक है ना, अगर फाउल पॉक्स हो गया है किसी भी एडल्ट में हो गया है तो देयर इज नो ट्रीटमेंट, फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मैंने आपसे डिस्कस किया पहले डिजीज, जिसको क्या नाम दिया? फाउल पॉक्स। फिर से देख लीजिए, फाउल पॉक्स इज कॉज्ड बाय एविपॉक्स वायरस, इट इज कॉज्ड बाय एविपॉक्स वायरस। सेकेंडली, सिम्टम्स की बात करिए मैंने कि क्या सिम्टम्स होंगे यहाँ पे। तो सिम्टम्स में मैंने बोला कि रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लेशंस हो जाएंगे, GIT में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लेशंस हो जाएंगे, ठीक है ना, लेशंस हो गए। और ट्रीटमेंट मैंने बोला कि वैक्सीनेशन इनिशियली दिया जा सकता है, 1 to 2 डे चिक्स को हम वैक्सीनेट कर दें तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर ये हो गया, इन्फेक्शन हो गया, किसी भी हाल में हो गया है, तो देन देयर इज नो ट्रीटमेंट, that the bird will eventually die. So this is the first disease, that is fowl pox disease. Clear हुआ यहाँ पे? Now comes the second disease and the important one, and it is called as रानीखेत डिजीज। क्या नाम दिया इसको हमने? रानीखेत डिजीज नाम दिया है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूकैसल्स डिजीज। इसी का दूसरा नाम क्या हुआ? न्यूकैसल्स डिजीज, रानीखेत डिजीज, न्यूकैसल डिजीज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉज कौन कॉज कर रहा है? तो इट इज कॉज बाय पैरामिक्सोवायरस, क्या सिम्टम्स हैं यहाँ पर? तो देखते हैं हम लोग। सिम्टम्स में यहाँ पर मैंने बोला कि सिम्टम क्या हुआ? स्नीजिंग। दूसरा सिम्टम क्या हुआ? कफिंग। द सेकेंड सिम्टम इज कफिंग शुरू, स्नीजिंग शुरू, कफिंग शुरू, ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम आई, एंड फाइनली हम ट्रीटमेंट लेंगे तो क्या यूज करते हैं? एंटीसेरा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किए फाउल के या बर्ड्स के 2 डिजीज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फाउल पॉक्स, नंबर 1 कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इट इज अ एविपॉक्स वायरस, वायरल डिजीज है। किसने किया है? एविपॉक्स वायरस ने किया है। सिम्टम में रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, लेशंस कॉज हो जाएंगे उसके GIT में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। और ट्रीटमेंट इसका यही है कि शुरुआत में, इनिशियल में, जब चीक्स फॉर्म होते हैं, हैचिंग होती है एक से, तो उसी समय क्या कर दिया जाए? वैक्सीनेट कर दिया जाए, तो बचने का चांस रहता है। अगर ये वायरस हो गया किसी भी स्टेज में, मीन्स 2, 4, 6 दिन बाद हो गया, फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, द बर्ड विल इवेंचुअली डाई। Second disease is Ranikhet disease, important one, also called as Newcastle's disease, and this is caused by paramyxovirus. It is caused by paramyxovirus, and symptoms are sneezing, coughing, and watery discharge from the eye. And the treatment is antisera. ठीक है ना, एंटीसेरा ले रहे हैं हम लोग, प्लाज्मा ट्रीटमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो जाता है। आफ्टर दिस नेक्स्ट डिजीज, इट इज फाउल कॉलरा, पुलोरम के नाम से भी जाना जाता है। तो फाउल कॉलरा में अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड साल्मोनेला पुलोरम। ये बैक्टीरिया है, इट इज अ बैक्टीरिया। तो फाउल कॉलरा इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला पुलोरम, तो साल्मोनेला पुलोरम जो होता है वो कॉज कर रहा है किसको? फाउल कॉलरा को। अब यहाँ पर सिम्टम्स देखते हैं हम लोग कौन से हैं। तो सिम्टम्स में
सबसे पहला सिम्टम मैंने लिया डायरिया। सबसे पहले मैंने क्या लिया? डायरिया। व्हाट इज डायरिया? व्हेन द लॉस ऑफ व्हेन देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस अलोंग विद द फीकल मैटर। फीकल मैटर के साथ बहुत सारे अमाउंट में अगर वाटर पास आउट हो रहा है तो क्या कॉज हुआ? डायरिया। अब जब डायरिया हुआ, वाटर का लॉस हुआ, तो क्या कंडीशन आ जाते हैं? डिहाइड्रेशन। कंडीशन क्या आ जाएगी? डिहाइड्रेशन। तो डायरिया होगा, बर्ड विल सफर फ्रॉम द डायरिया एंड सो दैट the bird will become weak, the bird will become dull due to the dehydration। dehydration से ज़्यादा होने से बर्ड जो होगी वो वीक हो जाती है, डल हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं किया गया, तो क्या होगा? द बर्ड विल डाई। द बर्ड विल डाई ड्यू टू एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, ड्यू टू एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। एंड फाइनली द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होगा? वी विल यूज द स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स। हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज करेंगे। और एंटीबायोटिक यूज करने के साथ में हम प्रोवाइड कराएंगे क्या? रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORS नाम सुना होगा। ह्यूमंस में भी डायरिया जब सीवियर हो गया या ह्यूमंस में कॉलरा हुआ तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ORS सोल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो वैसे ही हम यहाँ पर रिहाइड्रेशन थेरेपी किस में यूज करेंगे? बर्ड्स में यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाउल कॉलरा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाउल कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला पुलोरम। इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला पुलोरम। इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला पुलोरम। इट इज अ बैक्टीरिया। Symptom is diarrhea. Side diarrhea. What is diarrhea? Excess loss of water along with the fecal matter. ठीक है ना, that condition is diarrhea। और जब excess में water गया, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया क्या कॉज हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो गया जिससे बर्ड वीक हो जाएगा, डल हो जाएगा। ट्रीट करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स को एंड वी विल प्रोवाइड द रिहाइड्रेशन थेरेपी। वी विल प्रोवाइड द रिहाइड्रेशन therapy. So this is all about the fowl cholera. Now comes the next disease and the important one. Here it is the important one. NCERT में इसका नाम mention है. So it is the important one and it is called as bird flu. क्या नाम दिया इसको? Bird flu. It is called as bird flu. It is called as bird flu. Bird flu हुआ। कौन सा blood flu हुआ? H5N1. It is caused by H5N1 virus. It is caused by H5N1 वायरस। और H5N1 वायरस जो होता है वो अफेक्ट करता है बर्ड के कौन से सिस्टम को? इट अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बर्ड के कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। तो इट अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड्स। कैसे अफेक्ट करता है? ये वायरस जब पहुंचा हमारे बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे जाके लंग्स में फ्लूइड्स के सिक्रीशन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। फ्लूइड के सिक्रीशन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और जब फ्लूइड का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, ऑल्विलाई में फ्लूइड बहुत सारा हो गया, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैम्पर्ड होगा या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यस, आप जानते हैं हैम्पर्ड होगा, ब्लॉक होगा। और जब वो ब्लॉक हुआ तो ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं होगी। और जब ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं होगी तो इट विल कॉज द डेथ ऑफ द बर्ड। इट विल कॉज द डेथ ऑफ द बर्ड। ये बिल्कुल सिमिलर, जैसे आजकल कोरोना वायरस की हम बात करते हैं तो मेनली इन्फेक्ट किसको करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है। वो भी ऐसे ही जाता है, पहले हमारे नेक रीजन में है, गले में है, थ्रोट में है, ठीक है ना। थ्रोट में गया, लंग्स में गया, लंग्स में जाके म्यूकस प्रोड्यूस करवाता है, फ्लूइड प्रोड्यूस कराता है। और वो फ्लूइड जो निकला है वो सॉलिडिफाई हो गया। सॉलिडिफाई होने से क्या होगा? ब्रीदिंग ब्लॉक होगी और जो भी है विक्टिम उसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो कोरोना वायरस का सेम कुछ मिलता जुलता फंक्शन मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे बर्ड फ्लू में लंग्स में फ्लूइड का अमाउंट क्या करेगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वो इतना बढ़ जाएगा कि ऑल्विलाई में फिल हो गया। ऑल्विलाई में जब आ गया तो क्या नहीं होने देगा? एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होने देगा, ब्रीदिंग कॉज नहीं होगी, इवेंचुअली देयर वुड बी द डेथ ऑफ द बर्ड। तो ये आपको मैंने बताया किसके बारे में? बर्ड फ्लू। ब्लड फ्लू NCERT वर्ड दिया हुआ है, तो प्लीज इट इज द इम्पोर्टेंट वन। Now comes the last disease of the bird and it is aspergillosis. Aspergillosis, ठीक है ना। And it is caused by fungus. Aspergillus fumigatus.
इट इज कॉज्ड बाय फंगस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। अब इसमें क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चिक्स होते हैं, वो अफेक्टेड हो जाते हैं, और जब अफेक्टेड हो जाते हैं तो वहाँ पे भी जो मेन इफेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। लंग्स आर एडवर्सली अफेक्टेड एंड इवेंचुअली इट कॉजेस डेथ ऑफ द individual, it causes death of the individual. So this is all about this is all about the disease of the birds. पोल्ट्री डिजीज की मैंने आपसे बात करी, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ आप लोगों को और फिर आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 1 डिजीज मैंने क्या बताई थी, फॉल पॉक्स। नंबर 1 क्या बताया था, फॉल पॉक्स, एंड इट इज कॉज्ड बाय एवीपॉक्स वायरस। इट इज कॉज्ड बाय एवीपॉक्स वायरस, ठीक है ना। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, लेसेंस कॉर्ड हो जाएंगे, घाव हो जाते हैं जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ट्रीटमेंट है वैक्सीनेशन किसका, 1-2 डे चिक का, ठीक है ना। ये ट्रीटमेंट हुआ। अगर हो गया किसी भी स्टेज में, अगर हो गया तो देन देयर इज नो ट्रीटमेंट, ठीक है ना, देन देयर इज नो ट्रीटमेंट। इंपॉर्टेंट डिजीज रानीखेत डिजीज मैंने बताई, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू कैसल डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस। इट इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस एंड सिम्टम इज स्नीजिंग, कॉफिंग, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, आई से वाटरी डिस्चार्ज होना शुरू होता जाता है। और ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करेंगे, एंटीसेरा। ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करते हैं, एंटीसेरा। तो यहाँ पे लिया। नेक्स्ट डिजीज मैंने जो आपसे डिस्कस करी, इट इज़ फाउल कॉलरा। इट इज़ फाउल कॉलरा। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया। नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज साल्मोनेला पुलोरम। नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज साल्मोनेला पुलोरम। Symptom is diarrhea. The birds become weak, dull due to dehydration. Diarrhea, huge amount of water passing along with the fecal matter. तो water loss हो रहा है तो obviously condition कैसी हो जाएगी, dehydration। और dehydration किसी को भी हो गया, bird को हो गया या individual किसी human को भी हो गया, तो वो weak होगा और कैसा होगा, dull होगा। आप उसको treat करेंगे किससे, strong antibiotics देंगे, using the strong antibiotics and providing which therapy, rehydration therapy। rehydration therapy देके आप उसे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। देन कम्स द इम्पोर्टेंट वन, ब्लड फ्लो। बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय द वायरस H5N1 वायरस। कैटेगरी बहुत सारे वायरस हैं, ठीक है ना। H5N1 वायरस हुआ और ये मेनली अफेक्ट करता है किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ये चाहे हमारी बॉडी में आ जाए तो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और बर्ड की बॉडी में आ गया तो भी क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको अफेक्ट करेगा। और मेनली अफेक्ट किसको करेगा, लंग्स में। लंग्स में फ्लूइड का सिक्रेशन इतना ज़्यादा कर देगा कि हैम्पर्ड कर देगा किसको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। पैक हो गया, ब्रीदिंग नहीं होगी, ब्रीदिंग नहीं होगी तो क्या कॉज होगा, डेथ ऑफ द बर्ड क्या होगा, कॉज हो गया। अगर किसी पोल्ट्री फार्म में हम क्या करते हैं, इफ़ वी डिटेक्ट दैट द बर्ड्स आर सफरिंग फ्रॉम H5N1 वायरस, देन व्हाट वी विल डू मास किलिंग ऑफ द बर्ड। हम उसको मास किलिंग करेंगे, एक साथ सारी बर्ड्स को क्या करेंगे, किल कर देंगे, क्योंकि बहुत कंटेजियस वायरस है। अगर इसको नहीं किल करा तो एक से दूसरे, दूसरे से चौथे, पांचवें और आसपास जितना भी एरिया है सबको ये बैडली अफेक्ट कर सकता है। सो इसको H5N1 अफेक्टेड जो भी बर्ड्स अगर फार्म में हो जाती हैं तो देयर इज द मास किलिंग ऑफ द बर्ड्स। नेक्स्ट मैंने लास्ट आपसे डिस्कस किया एस्परजिलोसिस। Aspergillosis is caused by the fungus. It is caused by the fungus. Name of the fungus is Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus. Chicks are affected. ठीक है ना, chick young ones are affected here, and here their lungs are also affected adversely, and eventually leads to the death of the chicks. Okay, so this is all about the disease of the birds. Okay, now comes the next culture of animal husbandry, and it is sericulture. So what is sericulture? First of all, let us see here. It is the rearing of silkworm. It is the rearing of silkworm to obtain silk fibers is called sericulture. सिल्कवर्म को रियर करना, डोमेस्टिकेट करना, पालना। सिल्कवर्म को हम पाल रहे हैं, ठीक है ना। सिल्कवर्म को हम पाल रहे हैं किसके लिए, सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन करने के लिए। इस कल्चर को हमने क्या नाम दिया,
क्या नाम दिया हमने, सेरीकल्चर, ठीक है ना। सिल्क, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ले रहा हूँ। सिल्क वेरी फर्स्ट इट वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना में सबसे पहले सिल्क जो था चाइना में क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। इंडिया में भी, चाइना आज भी इसका मेन प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। बल्क ऑफ द प्रोडक्शन जो है आज भी चाइना में है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं। एंड इंडिया, इन इंडिया कर्नाटका is the leading state. Karnataka is the leading state for the production of silk. Karnataka is the leading state for the production of the silk. तो introduction कि silk very first discovered in China, very first it was discovered in China. चाइना में डिस्कवर हुआ था। इंडिया में कर्नाटका है, ठीक है ना। कर्नाटका जो है it is a leading state in production of silk fiber, अब कुछ मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज आप यहाँ पे यूज करूँगा कि सिल्क में क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। नंबर 1, सिल्क वॉर्म, it is not a silkworm, it is not a worm, it looks like a worm because the stage caterpillar, here the stage is caterpillar, and this caterpillar secretes the silk fiber, so this stage is called as silkworm. So it is not a worm, exactly worm, and this silkworm, it is a caterpillar of silk moth. यहाँ हो गया ये सिल्क मॉथ का कैटरपिलर को हमने क्या नाम दिया हुआ है, सिल्क वॉर्म दिया हुआ है। और सिल्क मॉथ का अगर हम एग्जांपल लें कॉमन सा, तो इट इज कॉल्ड एज बॉम्बैक्स मोराई। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखें कि जो है सिल्क इज, क्वेश्चन देखिए, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर क्या होगा, सिल्क ग्लैंड ऑफ लार्वा। देखिएगा यहाँ पे कि सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो क्या हुआ, सिल्क ग्लैंड ऑफ लार्वा, एंड दीज सिल्क ग्लैंड्स दे आर मॉडिफाइड salivary glands. They are modified salivary glands of larva. They are modified salivary glands. फिर से देख लीजिए, silkworm जो है, it is the caterpillar of silk moth. Scientific name of silk moth, it is Bombyx morai. Then the question कि silk produce कहाँ से होगा, तो silk gland से होगा। किसके silk gland से होगा, लार्वा के silk gland से होगा। और ये silk gland क्या है, तो हमने बोल दिया it is modified salivary glands. क्लियर हुआ। दूसरा, silk is made up of proteins. Silk is made up of proteins. जो पहला प्रोटीन है उसको मैंने नाम दिया, it is fibroin protein. कौन सा प्रोटीन आया, fibroin protein. And the second protein, it is sericin. So it is made up of two component. Silk is made up of protein combination. तो एक प्रोटीन को आपने क्या नाम दिया है, हमने क्या नाम दिया है, फिब्रोइन। क्या नाम दिया है, फिब्रोइन। और दूसरे को हमने क्या नाम दिया है, सेरिसिन। तो ये कंपोजिशन हुआ किसका, सिल्क का। ये सिल्क का कंपोजिशन हुआ। अब ये सिल्क जो हुआ, ये सलाइवरी ग्लैंड ने बना लिया है। अब ये सीक्रेट कहाँ से होगा, ये बाहर कहाँ से आएगा। तो एक चीज़ और, सिल्क इज प्रोड्यूस बाय, क्या हुआ, सिल्क ग्लैंड। आप कमर्शियली अगर हम सिल्क को ऑब्टेन करना है तो कहाँ से करेंगे, इसको भी देख लीजिए। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, दोनों में फर्क देखिए यहाँ पर। सिल्क इज ऑब्टेन, द वर्ड इज फ्रॉम, द वर्ड इज कोकून।
ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया कोकून। देखिए सिल्क इज प्रोड्यूस बाय, आंसर क्या हो गया सिल्क ग्लैंड, एंड सिल्क इज ऑब्टेन, कमर्शियली हमको सिल्क को निकालना है तो हम सिल्क को कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, तो वो सिल्क ग्लैंड नहीं आएगा यहाँ पर, हम किससे ऑब्टेन करेंगे, कौन सी स्टेज से, कोकून स्टेज से। कौन सी स्टेज से करेंगे, कोकून की स्टेज से हम इसको ऑब्टेन करेंगे। सो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। देन मैंने यहाँ पे लिया कि सिल्क इज गिवन आउट, सिल्क इज गिवन आउट, सिल्क इज गिवन आउट। ये सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए सिल्क बन गया है, सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रेशन कर लिया, सिल्क बन गया, सो सिल्क निकलेगा कहाँ से बाहर। तो अगर मैं गेस करने को कहता तो 99.9% बच्चे क्या बोलते हैं, सर इट विल बी गिवन थ्रू द माउथ, इट विल बी गिवन थ्रू द माउथ। लेकिन माउथ से सिल्क नहीं आता है, माउथ के वेंट्रल साइड पे नीचे की तरफ वहाँ पे एक ओपनिंग होती है, एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज, द वर्ड इज स्पिनरेट, द ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्पिनरेट, opening is called as spinrate. So this is the introduction about the sericulture, about the silk production। इसके बारे में हमको बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं क्या है कैसा है। फिर से देखिए what is sericulture, what is sericulture, what is sericulture। तो sericulture is the rearing of silkworm, is the rearing of silkworm। silkworm को domesticate कर रहे हैं, पाल रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं, to obtain silk fiber, to obtain silk fiber। so it is the rearing of silkworm to obtain silk fiber। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हुआ यहाँ पे। दूसरा, वेरी फर्स्ट सिल्क वॉज वेरी फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना, इट वॉज वेरी फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। सबसे पहले जो डिस्कवर हुई सिल्क, जो डिस्कवर हुई थी कहाँ, चाइना में हुई। इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जो इसको बनाते हैं, इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जो इसको बनाते हैं, ठीक है ना। कर्नाटका जो है वो कैसा स्टेट है, लीडिंग स्टेट है। कर्नाटका इज द लीडिंग स्टेट, कर्नाटका इज द लीडिंग स्टेट। बिसाइड कर्नाटका तमिलनाडु इज देयर, आसाम इज देयर, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ इज देयर, जो इसको बनाते हैं। लेकिन जो कर्नाटका है इट इज़ द लीडिंग स्टेट। तो इंडिया में आपको याद रखना है कर्नाटका स्टेट को कि इट इज़ द लीडिंग स्टेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, इट इज़ द लीडिंग स्टेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हुई कि ये जो सिल्क वर्म है क्या, कौन सा वर्म है, तो इट इज़ अ कैटरपिलर। प्लीज रिमेंबर इट इज़ ए कैटरपिलर। किसका कैटरपिलर है, तो इट इज़ अ कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ एंड साइंटिफिक नेम इट्स बॉम्बैक्स मोराई। इसका साइंटिफिक नेम क्या हुआ, बॉम्बैक्स मोराई। साइंटिफिक नेम क्या हो गया, बॉम्बैक्स मोराई। क्लियर हुआ यहाँ पे। नाउ सी सिल्क इज प्रोड्यूस बाय, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। दो चीजें हैं, सिल्क प्रोड्यूस कौन कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया, इट इज प्रोड्यूस बाय सिल्क ग्लैंड, इट इज प्रोड्यूस बाय सिल्क ग्लैंड ऑफ लार्वा, इट इज प्रोड्यूस बाय सिल्क ग्लैंड ऑफ लार्वा। तो लार्वा का सिल्क ग्लैंड है वो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। ये लार्वा यही है, कैटरपिलर, कैटरपिलर को यहाँ लार्वा है ये। तो इसके जो सिल्क ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करते हैं किसको, सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। और ये सिल्क है कि सिल्क ग्लैंड्स हैं क्या, तो दे आर मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड्स, दे आर मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनली आ रहा है यहाँ पे कि सिल्क किसका बना होता है, सिल्क इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन याद रखने हैं, one is fibroin protein and one is sericin protein, one is fibroin protein and one is sericin protein। next ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। प्रोड्यूस बाय एंड ऑब्टेन बाय, प्रोड्यूस बाय सिल्क ग्लैंड, प्रोड्यूस बाय सिल्क ग्लैंड, बट ऑब्टेन फ्रॉम, कमर्शियली अगर हमने सिल्क को ऑब्टेन करना है, निकालना है, तो हम कहाँ से लेंगे, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। सो दिस स्टेज इज इंपॉर्टेंट हियर, विल ऑब्टेन कमर्शियली सिल्क फाइबर फ्रॉम द cocoon, will obtain from the cocoon, will obtain from the cocoon। So next last point, the silk is given out, it is being secreted here, secretion हो गया, सारी चीज हो गया। बाहर आएगा तो कहाँ से आएगा, माउथ से नहीं आएगा, एक ओपनिंग से आएगा। उस ओपनिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, it is called as spinrets, it's called as spinret। So these points are, I hope they are the important points and I hope the points are clear। These all are the questions which I have given you in the starting only, ठीक है ना। फर्स्ट डिस्कवरी, इंडियाज सेकंड क्वेश्चन, इंडियाज लीडिंग स्टेट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जैक्टली द सिल्क वर्म, इट इज कैटरपिलर, किसका कैटरपिलर, सिल्क मॉथ का। देन सिल्क इज प्रोड्यूस बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क ग्लैंड, व्हाट आर सिल्क ग्लैंड, दे आर मॉडिफाइड सिलाइवरी ग्लैंड, अगला क्वेश्चन। फिर सिल्क किसका बना होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, फिब्रोइन एंड सेरिसिन,
Again one question, important question, silk is obtained commercially from, not from the silk gland, आंसर क्या हो जाएगा, कोकून हो जाएगा. एंड फाइनली एक और क्वेश्चन कि सिल्क कहाँ से बाहर आएगा, फ्रॉम वेयर द सिल्क इज गिवन आउट, द आंसर बिकम्स स्पिन रेट, द आंसर बिकम स्पिन रेट. सो दिस इज अबाउट द सेरिकल्चर. नाउ see here I am talking about the type of the silk. सिल्क के कुछ टाइप इंपॉर्टेंट हम ले रहे हैं, कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं, कैसे हैं क्या है, ठीक है ना. यहाँ पर तो फर्स्ट इट इज सिल्क टाइप. सेकंड सिल्क वॉर्म, कौन इसको बना रहा है, इट इज फॉर्म बाय विच सिल्क वॉर्म इज included in forming the type of the silk. And finally the feeds on the leaves of tree. ये जो सिल्क वॉर्म है, दिस सिल्क वॉर्म फीड कर रहा है किसकी, ट्री के ऊपर लीव करता है, ठीक है ना. तो ये आपको मैंने यहाँ पे बताया. अब मैंने सबसे पहले लिया मलबेरी सिल्क. इट इज़ द मलबेरी सिल्क एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन. वाई? बिकॉज इट इज़ सुपीरियर मोस्ट. इट इज़ सुपीरियर मोस्ट सिल्क. जितने भी मैंने सिल्क यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें सबसे सुपीरियर क्वालिटी जो सिल्क हुआ वो कौन सा हुआ, मलबेरी सिल्क. कौन इसको सिक्रेट करता है, सो द आंसर इज बॉम्बेक्स मोराई. द आंसर इज बॉम्बेक्स मोराई. किसने इसको बनाया, तो आंसर क्या हो गया, बॉम्बेक्स मोराई, ठीक है ना. एंड इट फीड्स ऑन लीव्स ऑफ विच ट्री, तो आंसर बिकम्स मलबेरी ट्री. it feeds on leaves of which tree, so answer becomes mulberry tree. So the first, again look here, the first type of silk is mulberry silk. Why it is important? Because it is the superior most. जितने भी 4 सिल्क लिखे हैं उसमें सबसे सुपीरियर कौन सा हुआ, मलबेरी सिल्क होता है. कौन इसको सिक्रेट कर रहा है, बॉम्बेक्स मोरी, सिल्क वॉर्म का नाम है. और किसके ऊपर ये फीड करता है, इट फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री. विच ट्री, इट्स मलबेरी ट्री. शहतूत बोलते हैं हिंदी में, शहतूत के पत्तों को फीड करता है. तो ये आपने यहाँ पर इसके बारे में बताया, क्लियर हुआ यहाँ पे. दूसरा मैंने लिया यहाँ पर मुगा सिल्क. दूसरा सिल्क कौन सा आ गया, इट्स मुगा सिल्क. दिस इज द मुगा सिल्क एंड दिस मुगा सिल्क इज सिक्रेटेड बाय it is formed by, the name of the silkworm is Antheria asama. Name of the silkworm is Antheria asama and it feeds upon which tree, it feeds upon salt tree, leaves of the salt tree, leaves on the salt tree. Salt trees they are the natives of Assam. Assam का है, इस वजह से हमने इसको नाम क्या दिया हुआ है, असमा, ठीक है ना. तो ये यहाँ पे आपने इसके बारे में बताया. Then comes third one, eri silk. Third one is eri silk and this eri silk, this one eri silk, it is secreted by a silkworm Attacus racinae. The name of the worm is Attacus racinae and this Attacus racinae, it feeds upon the tree and the name of the tree is castor tree. They feed on the leaves of the tree and the name of the tree is castor tree. Which tree? Castor tree. Next comes tussar silk. Next comes tussar silk. This is the tussar silk and this tussar silk is secreted by the silkworm Antheria royale. It is secreted by Antheria royale and this Antheria royale, it feeds upon the leaves of oak tree. Feeds upon the oak tree. So these are the 4 types of silk, ठीक है ना, secreted by the silkworm and feeding upon the respective tree. I am repeating here once again. The number 1, the important one, it is mulberry silk. Why it is important? It is most. Why it is important? It is most superior, most superior, सबसे ज़्यादा superior quality wise जो सबसे अच्छा सिल्क है वो कौन सा है, मलबेरी सिल्क है. And this mulberry silk is secreted by Bombyx moray, which feeds upon which tree? Mulberry tree, which feeds upon the leaves of the mulberry tree. Second one is Muga silk. The name of the worm who is responsible for forming it is Antheria asama and the name of the tree is salt tree. The third is eri silk. Third one is eri silk and eri silk, it feeds upon Attacus racinae. Eri silk is secreted by Attacus racinae and it feeds upon the leaves of the tree of castor tree. Tussar silk, the last one, it is formed by the Antheria royale and Antheria royale feeds upon the leaves of
oak tree. So this is about the different types of silk, different types of silks who are being produced by the different types of silkworm and feeding on different types of tree. See, ठीक है, am I clear? Now comes the next one, silk production. How the silk is produced. This is a section of the larva. This is the section of the larva, and this is the section of the larva. And look here, this green color structure. This green color structure. It is a salivary gland. It is a salivary gland. I should write here. This green color structure. It is a salivary gland. स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना. अब देखिए स्लाइवरी ग्लैंड का ये एंटीरियर पार्ट हुआ और ये वाला पार्ट पोस्टीरियर हुआ. दिस इज एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज पोस्टीरियर पार्ट. सो एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड. एंटीरियर पार्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, दिस वन, एंड दिस इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड. ये क्लियर हुआ आपको. दिस इज अ सेक्शन ऑफ द लार्वा. एंड लुक हियर, दिस opening is called spinnerets. This opening is called spinneret. अभी मैंने आपको बताया था कि माउथ के नीचे ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनरेट बोलते हैं, जहां से सिल्क आएगा बाहर. क्लियर हुआ है यहाँ पे. अब देखिए इस पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, देयर इज सिक्रीशन ऑफ fibroin protein. There is a secretion of fibroin protein. और सिल्क में फिब्रोइन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 80%. कितना परसेंट हुआ, 80% कंट्रीब्यूशन होता है, फिब्रोइन सिक्रेट हुआ. एंड दिस एंटीरियर पार्ट जो है, दिस इज द एंटीरियर पार्ट, एंड दिस एंटीरियर पार्ट secretes the word is sericin. एंड दिस सेरिसिन, बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो सेरिसिन सिक्रीट हुआ ये एक्ट करता है किसकी तरह, ग्लू की तरह, गम की तरह. मैं अभी बता रहा हूँ आपको. देखिएगा यहाँ पे कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये मैंने बोला फाइबर्स आए. दिस इज फेब्रोइन प्रोटीन, दिस वन इज फेब्रोइन प्रोटीन. लुक हियर, एंड दिस फेब्रोइन प्रोटीन इज अप्रोचिंग हियर ऑन द एंटीरियर साइड. तो जैसे ये फिब्रोइन प्रोटीन यहाँ पे पहुँचता है, कौन ऐड हो जाता है, सेरिसिन ऐड हो जाता है. और ये जो सेरिसिन है इन फाइबर्स को क्या कर देता है, ग्लू कर देता है, आपस में चिपका देता है. तो सेरिसिन का काम क्या हो रहा है, ग्लोइंग का काम हो रहा है, ग्लोइंग करता है, गमिंग का काम करता है. हम बात करें, गमिंग वर्ड आ जाता है. फाइबर्स को क्या करता है, ये गमिंग कर देता है. और ये जब गमिंग हो गए तो यहाँ से फाइबर्स स्पिनरेट से निकल के, देखिए ये अगर मैं फाइबर ले लेता हूँ, ये सिल्क फाइबर मैंने ले लिए, ठीक है ना, ये मान लेते हैं सिल्क फाइबर है, और इन्हीं के साथ में मैंने बोल दिया क्या हो गया, यहाँ पर ये गमिंग आ गई. ये यहाँ पर तो ग्रीन कलर का मैंने जो यहाँ पे लिया पार्ट, जो ग्रीन कलर का मैंने लिया उसको मैंने बोल दिया क्या है, ये सेरिसिन है. जैसे सेरिसिन. और जो व्हाइट कलर का मैंने पार्ट लिया है, यहाँ पर जो व्हाइट कलर का पार्ट मैंने लिया है, ये मैंने क्या बोल दिया, फेब्रोइन. क्या बोल दिया मैंने, फेब्रोइन. प्लीज बोर्ड पे देखिएगा. तो ये यहाँ पर देखिए, पोस्टीरियर पार्ट से फेब्रोइन बना, एंटीरियर पार्ट से सेरिसिन आया, ये गए फाइबर्स, ग्लू हो गए, ग्लू होने के बाद स्पिनरेट से निकल के क्या हो गए, बाहर आ गए, ठीक है ना. फ्रॉम स्पिनरेट्स दे आर गिवन आउटसाइड. नाउ सी व्हाट हैपन व्हेन दीज टू कम्स इन कांटेक्ट विद एयर. व्हेन दे कम्स इन look here, when these two comes in contact with air. जब ये एयर के कांटेक्ट में आए तो ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. ये फाइबर कैसे हो गए, हार्ड हो जाते हैं. ये कैसे हो गए, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है ना. तो ये हार्ड हो गए, तो यहाँ पर अब ये हार्ड हो गए तो हम बोल रहे हैं क्या बन गए यहाँ पे, now they are forming the silk fibers. So this is the brief about how the silk is produced by the larva, that is caterpillar. ठीक है ना. फिर से देखिए,
The green color structure is the salivary gland, and salivary glands get open into the opening, and this opening is called spinnerets. This opening is called spinnerets. ये important है, ये माउथ नहीं है, माउथ के नीचे ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया, spinnerets. इसके दो पार्ट, salivary gland has two part, posterior part and the anterior part. The posterior part secretes fibroin. It secretes a protein fibroin. ठीक है ना, how much percent? 80%. And look here, these are the fiber like proteins, and when this fiber like protein reaches to the anterior part, there comes the another secretion which is glue like, gumming. The word is gumming, its function is gumming. The word is gumming. It glues the, ठीक है ना, फाइबर्स को चिपकाने का काम करता है. यहाँ पर एंटीरियर पार्ट में आया, और जब ये ग्लू हो गया तो ये यहाँ से निकल के ये फाइबर्स ये बाहर आ रहे हैं, तो बाहर दोनों प्रोटीन बाहर आए, फिब्रोइन भी आया और कौन आया, सेरिसिन भी आया. When these two comes in contact with the air, they becomes the heart, and when they become heart, they forms the silk. So this is how the silk production takes place in the larva. क्लियर हुआ यहाँ पे. अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे होती है. यहाँ पर look here, this is the silk moth. Obviously this is the silk moth, मेल एंड फीमेल. मैंने एक ही लिया है, मैंने फीमेल को ड्रॉ किया है, मेल को ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है ना. यहाँ पे कॉपुलेशन होगा, मीटिंग होगा, फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और जब फर्टिलाइजेशन हो गया, प्लीज़ बच्चों देखें, तो फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो दिस फीमेल मॉथ रिलीजेस approximately 500 eggs at a time. Approximately 500 eggs, fertilized eggs outside the body. It is approximately, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, इससे थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं. बट लुक हियर, fertilization took place, mating took place, fertilization took place, eggs get fertilized, and female moth it releases fertilized eggs outside the body. How many? Approximately answer comes 500 eggs. कितने eggs produce हुए? 500 eggs produce हुए. So these are the eggs. ठीक है ना, ये eggs हम लोगों ने बनाए हैं यहाँ पर. Look here, these are the eggs I am drawing here. ठीक है ना, तो मैंने बोला these are the eggs. ठीक है ना, and they are shed. Now see what happened. Now these fertilized eggs, hatching takes place. Hatching हुई. जब hatching हुई, when hatching took place, when there is the hatching, I say fertilized eggs are given out, hatching took place. When hatching took place, the larva is formed. When the hatching took place, larva is formed. Larva form हो जाता है यहाँ पर, और जब larva form हुआ तो इस larva में cause होती हैं 4 मिल्टिंग कॉज होती हैं. मोल्टिंग लार्वा में जो चेंजेस होते हैं उसी को हम मोल्टिंग्स बोलते हैं. तो 4 मोल्टिंग होने के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ किसका, कैटरपिलर का, और यही कैटरपिलर क्या है, लार्वा है. और ये जो स्टेज है किसी भी लार्वा है ये, और ये जो स्टेज है यहाँ पर कैसी स्टेज है, इट इज़ एक्टिव स्टेज. प्लीज़ याद रखिएगा, किसी भी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में जो लार्वा होता है वो कैसी स्टेज होता है, एक्टिव स्टेज होता है. कैसी स्टेज होता है, एक्टिव स्टेज होता है. सो दिस इज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेल एंड फीमेल सिल्क मॉथ इज देयर. फर्टिलाइजेशन टुक प्लेस. फर्टिलाइजेशन के बाद में सिल्क मॉथ क्या कर रही है, रिलीजेस फर्टिलाइज्ड एग्स आउटसाइड. इट रिलीजेस फर्टिलाइज्ड एग्स आउटसाइड. Approximately 500 eggs are released. Now once the eggs are released, hatching of the eggs takes place and egg hatch into the larva. Egg hatching हुआ तो क्या बना, larva बना. इस larva में 4 moltings होते हैं. How many moltings are there? 4 moltings takes place. 5 in star. 4 molting, 5 in star हो गए. तो ये जो हुआ तो इन्होंने फॉर्म करा किसको, लार्वा स्टेज. और लार्वा स्टेज को हमने क्या लिया, क्या बोला है, कैटरपिलर. क्या नाम दिया है, कैटरपिलर, ये नाम दिया है. अब देखिए लार्वा जो हुआ, ये लार्वा जो है किसी भी लाइफ साइकिल की कैसी स्टेज होती है, एक्टिव स्टेज होती है. एक्टिव स्टेज मीन्स इट स्टार्ट्स फीडिंग. ये जो लार्वा जो होता है ये क्या शुरू कर देता है, इट स्टार्ट्स फीडिंग. यस,
फिर देखिए यहाँ पर सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ रिलीजेस फर्टिलाइज एग, fertilized eggs got hatched and when hatching takes place larva is formed and in larva 4 moltings takes place। 4 मोल्टिंग होती है, 4 चेंजिंग स्टेजेस होती हैं और 4 मोल्टिंग के बाद लार्वा कन्वर्ट हुआ किसमें, कैटरपिलर में। किसमें कन्वर्ट हुआ, कैटरपिलर में। और ये कैटरपिलर या लार्वा किसी भी इंसेक्ट की स्टेज की मैंने बोला कैसी स्टेज होती है, एक्टिव स्टेज होती है। एक्टिव स्टेज का मतलब क्या हुआ कि ये स्टार्ट करते हैं किसको, दे स्टार्ट फीडिंग, they start feeding leaves of the tree, they start feeding leaves of the tree। इतना क्लियर हुआ। अब इस कैटरपिलर स्टेज में या लार्वा स्टेज में हमने बोला कि अब यहाँ पे स्पिनिंग शुरू होगी किसकी, सिल्क के, स्पिनिंग सिल्क की शुरू होगी। और जो ये स्पिनिंग हो रही है देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये स्पिनिंग की डायरेक्शन जो होगी इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पिन द सिल्क फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और ये आउटसाइड से इनसाइड जब स्पिन करता है तो लार्वा क्या होता है, खुद किसके अंदर बंद हो जाता है, ये सिल्क फाइबर्स के अंदर बंद हो जाता है। और जब ये बंद हो गया तो इसी स्टेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोकून। इसी स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं, कोकून नाम से हम इसको जानते हैं। सो दिस इज, आई होप इट इज क्लियर अबाउट द कोकून। वंस अगेन this caterpillar or this larva, this caterpillar, it starts spinning the silk from direction, याद रखिएगा, it is from outside to inside, it is from outside to inside। so the larva is get embedded into the silk secreted by itself। जो सिल्क उसने सिक्रेट किया है उसी के अंदर वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब बंद हो गया तो हमने बोला कौन सी स्टेज बन गई हमारे पास, कोकून स्टेज। In this stage only the fibers are being obtained from this stage। फाइबर्स जो हमको कमर्शियली फाइबर्स लेने होते हैं हम इसी स्टेज से लेते हैं। कैसे लेते हैं उसको मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि इसी स्टेज से हमने किसको लेना है, फाइबर्स को लेना है। देखिए अगर फाइबर्स को लेना है तो हम कोकून को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और एक प्रोसेस में डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये अगली स्टेज यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोकून को डेवलप होने दें तो कोकून से अगली स्टेज जो डेवलप होगा उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। क्या नाम देते हैं, प्यूपा। एंड दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राइसैलिस, इट इज ऑल्सो नोन एज क्राइसैलिस स्टेज। और ये कैसी स्टेज होती है, प्यूपा इनएक्टिव स्टेज होती है। ये स्टेज कैसी होती है, इनएक्टिव। तो ये देखिए ग्रीन कलर का फाइबर है, अंदर ये प्यूपा यहाँ पे आ गया, इनएक्टिव होता है, कोई फीडिंग वगैरह नहीं करता है, तो स्टेज कैसी हो गई, इनएक्टिव स्टेज हो जाती है। अब ये प्यूपा जो होगा ये डेवलप करेगा किसमें, ये डेवलप करेगा किसमें, एडल्ट, यहाँ से इमेगो, यंग वंस में। यंग वंस को हम क्या नाम देते हैं, इमेगो। और ये देखिए ये इमर्ज होके बाहर आएगा, या तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेल में, या कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फीमेल में। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ, दिस इज द लाइफ साइकिल फॉर द सिल्क मॉथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि मेल एंड फीमेल बोथ सिल्क मॉथ आर प्रेजेंट हियर। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल मॉथ सिल्क मॉथ रिलीजेस fertilized egg outside, how many, approximately 500। so eggs are coming out here, ठीक है ना। लीव्स ले रखे हम लोगों ने। तो एक यहाँ पर फर्टिलाइज एग्स का क्या कॉज हुआ, हैचिंग कॉज हुई। हैचिंग से क्या हुआ, लार्वा बना। लार्वा में क्या कॉज हुए, 4 मोल्टिंग हुए एंड कन्वर्ट हो गया किसमें, कैटरपिलर। कैटरपिलर एक्टिव स्टेज हो गई यहाँ पे। एक्टिव स्टेज क्यों बोला, क्योंकि स्टार्ट कर देता है फीडिंग, इट स्टार्ट्स फीडिंग। फीडिंग स्टार्ट कर दी है तो हमने बोल दिया कैसी स्टेज हो गई, कैसी स्टेज है, एक्टिव से। अब यहाँ पर स्पिनिंग ऑफ द सिल्क शुरू होता है। वही स्पिनिंग ऑफ द सिल्क, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हुए, पोस्टीरियर साइड से क्या निकलेगा, फेब्रोइन, एंटीरियर से सेरेसिन, और स्पिन रेट से क्या होंगे, ये बाहर आ जाएगा सिल्क। और ये बाहर आने के बाद वीव होता है कैसे, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जिसकी वजह से ये लार्वा खुद किसके अंदर बंद हो जाता है, सिल्क के अंदर खुद बंद हो जाता है। और जब पूरी तरह से कंप्लीटली क्लोज हो गया बाय द फाइबर्स, नाउ द स्टेज इज कॉल्ड कोकून। और इसी स्टेज पे हम लोग ऑब्टेन करते हैं कमर्शियली सिल्क को। कमर्शियली सिल्क को हम यहीं से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपको मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है ना। अब इसको अलाउ कर दिया जाए ग्रो करने के लिए, कोकून को अलाउ कर दिया जाए तो स्टेज कौन सी आएगी, प्यूपा। कौन सी स्टेज आएगी, प्यूपा। दिस प्यूपा इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राइसैलिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
chrysalis. The chrysalis is the important word and remember it is the inactive stage. यहाँ पर फीडिंग किसी भी इंसेक्ट का प्यूपा जो स्टेज होगा वो इनएक्टिव होगा, यानी वो फीडिंग नहीं करेगा, कोई फीडिंग यहाँ पे नहीं करेगा. एंड प्यूपा डेवलप्स इनटू अ यंग वन एंड यंग वन इज कॉल्ड एज इमेगो. यंग वन इज कॉल्ड एज इमेगो और ये डेवलप करेगा या तो मेल में या फिर फीमेल में. ये क्लियर हुआ यहाँ पे. तो अब आपको याद रखना है कि मेरे को सिल्क ऑब्टेन करना है और सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर कोकून चाहिए. तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिए कैसे होता है कोकून में. यहाँ पर ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क फाइबर, कहाँ से मिलेगा सिल्क फाइबर? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये ऑब्टेनिंग करेंगे हम किससे, कोकून से. कोकून से यहाँ से ऑब्टेन करेंगे. कैसे ऑब्टेन करेंगे देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कलेक्शन. किसका कलेक्शन किया, कोकून्स का कलेक्शन किया. नंबर वन, देयर इज द कलेक्शन ऑफ कोकून. देयर इज कलेक्शन ऑफ कोकून. क्लियर. सेकेंडली, आफ्टर कलेक्शन क्या करेंगे, वी ट्रीट with boiling water. जो कोकून्स हमने कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ कोकून्स, जो कोकून्स हमने कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ में, बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं. क्यों ट्रीट करते हैं, टू डिसॉल्व. ट्रीट करने से क्या होगा, यहाँ पर सेरिसिन प्रोटीन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये सेरिसिन प्रोटीन क्या कर जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. ये सेरिसिन प्रोटीन क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा. और जब ये डिसॉल्व हुआ तो हमने इसको क्या नाम दिया, डीगमिंग. इसको हमने क्या नाम दिया भाई, इट इज नेम एज डीगमिंग. और जब डीगमिंग हो गई, सेरिसिन डिसॉल्व हो गया, तो अब क्या होगा, तो हमने बोला कि जो फाइबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फाइबर्स आर सेपरेटेड. फाइबर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. फाइबर्स आर सेपरेटेड. एंड व्हेन दीज फाइबर्स आर सेपरेटेड, तो हम इस फाइबर्स को क्या करेंगे, वी विल डू द रीलिंग ऑफ फाइबर्स. एंड आफ्टर रीलिंग क्या कर लेंगे, हम इसे स्टोर कर लेंगे. आफ्टर रीलिंग हम इसे क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे. सो दिस इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज देखिए. यहाँ पर हमने कोकून को ऑब्टेन करना है, कहाँ से ऑब्टेन करना है, कोकून से. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ कोकून. नंबर वन क्या किया हमने, कलेक्शन ऑफ कोकून. सेकंड क्या किया हमने, यहाँ पे हमने इसको ट्रीट किया किसके साथ में, with boiling water. This collection of cocoon is treated with the boiling water. Why it is being treated with the boiling water? Because when we treat with boiling water, sericin protein it get dissolved. Sericin protein dissolve हो जाए और उसके dissolve होने को हम लोग क्या बोलते हैं, डीगमिंग हो गई. क्या हो गई, गमिंग. इससे पहले क्या करा था इसने, गमिंग करी थी. अब इसने क्या करा है, जब हमने इसको ट्रीट किया बॉइलिंग वाटर के साथ में, तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसने क्या किया कि डिसॉल्व हो गया यानी डीगमिंग. ठीक है ना, डीगमिंग हटा दी उसने. और व्हेन द गमिंग इज रिमूव्ड, when the gumming is glue is removed, gum is removed, what happen, the fibers get separated. And when the fibers get separated, तो हम इन fibers का क्या कर लेते हैं, रीलिंग कर लेते हैं. रीलिंग समझते हैं, धागे को क्या करेंगे, किसी बेस के ऊपर रील बना लेते हैं, लपेट लेने को हम बोलते हैं रीलिंग करते हैं. एंड वी डू द रीलिंग ऑफ द फाइबर्स एंड फाइनली वी स्टोर इट. So this is how we obtain the silk fibers from the cocoon. तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया. फिर से एक बार देख लीजिए. हमने सिल्क फाइबर ऑब्टेन करना है कहाँ से, कोकून से. प्रोडक्शन कहाँ से होगा सिल्क फाइबर, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर होगा सिल्क ग्लैंड और द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द लार्वा. क्लियर हुआ डिफरेंस यहाँ पे. कैसे होगा, नंबर कोकून से स्टार्ट करना है. नंबर वन, कलेक्शन ऑफ द कोकून्स. नंबर टू, ट्रीटेड विद द बॉइलिंग वाटर. न्यू ट्रीट करा, सेरिसिन प्रोटीन गेट डिसॉल्व एंड इट कॉजेस डीकमिंग ऑफ द फाइबर. एंड जब डीकमिंग हुआ तो फाइबर्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए तो फाइबर्स की हमने रीलिंग कॉज कर दी और उसको स्टोर कर लिया. फिर उसका जो यूज हो रहा है जहाँ पे भी हम उसको कमर्शियली यूज कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ द
silk fibers are produced, are obtained commercially from, again the question is answer is cocoon. The cocoon stage is important one, and if it is allowed to grow, if the cocoon stage is allowed to grow, then it develops into develops into pupa, then it develops into young ones, and young ones develops into the male or the female silk moth. So this is all about the obtaining the silk fiber from the cocoon. Am I clear? Now coming to the next topic. Coming to the next topic, it is the disease of silkworm. Last topic, it is the disease of silkworm. It is the disease of silkworm. So what happens in here? First of all, the number one disease, it is pebrine disease. The number one important disease, it is pebrine disease, and this pebrine disease is caused by the word is Nosema bombycis. It is caused by Nosema bombycis, and this Nosema bombycis, it is one of the प्रोटोजोआ. ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का एग्जांपल है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, ठीक है ना. तो पेब्राइन डिजीज जो होती है वो इट इज कॉज्ड बाय नोसेमा bombycis. It is caused by Nosema bombycis, and this Nosema bombycis here, ठीक है ना, it is a protozoan. Please remember, it is a protozoans. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या इन्फेक्टेड कौन हो रहा है? तो दिस Nosema bombycis it mainly affects the eggs. ये किसको इफेक्ट कर रहे हैं? एक्स को इफेक्ट करते हैं, और जब एक्स को इन्फेक्ट कर दिया तो क्या होगा? लार्वा क्या कर जाएगा? वहीं पे डेड हो जाता है, डाइस हो जाता है. सो इट इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू द silkworm, silk industry. So it is a great threat to the silk industry. The second disease is flatchery. And this flatchery disease is caused by bacteria, and name of the bacteria is Streptococcus. It also infects the larva, and eventually the larva gets die. जो larva होता है eventually क्या हो जाता है? Dead हो जाता है. Now comes one more name of the disease. It is muscardine. And this muscardine disease, it is caused by a fungus. And here, look here the larva is infected. ये फंगस क्या करती है? इसकी बॉडी के ऊपर ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद इसकी बॉडी को पियर्स करके अंदर की तरफ क्या कर जाती है? मूव कर जाती है, पूरे विसरल ऑर्गन में फैल जाती है. एंड इवेंचुअली क्या होगा? जब ऐसा कुछ हुआ तो फाइनली जो लार्वा होगा वो क्या कर जाएगा? इट इज किल्ड और इट डाइज. So this is the three important diseases which I have discussed with you. Number one, pebrine disease. Again the important one, and then the important one. It is caused by a protozoan. And name of the protozoan is Nosema bombycis. It mainly affects the egg. The larvae are produced, but they eventually dies away. दूसरा flatchery disease caused by the bacteria. What is Streptococcus? Here also the larva dies. And muscardine disease, it is caused by the fungus, green fungus बोला जाता है. And the fungus grow on the body of the larva and penetrates the body of the larva into the visceral organ. And when it moves into the visceral organ, what happens? Finally, the larva here dies. So this is all about the sericulture. Am I clear? So we finally conclude the silkworm diseases, silkworms life cycle, silkworms silk production, okay, type of silk, okay, how the silk is produced, how the silk is obtained, everything is discussed here. So this finishes our important topic of sericulture. Now we comes to the another topic. Another topic, and it is known as apiculture.
another practice of the another practice of the animal husbandry, apiculture. अब apiculture है क्या? तो it is the rearing of honeybee. It is the rearing of honeybees to obtain. It is the rearing of honeybees to obtain what? Two products. One is bee wax and second one is honey, and it is called as apiculture. फिर से देखिए, rearing of honeybees to obtain bee wax and honey. It is called as apiculture. ठीक है ना? It is called as apiculture. Of these two product, यहीं से क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट में से प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है, मेन प्रोडक्ट कौन सा है? क्लास में अगर होता तो बच्चे जवाब देते सर हनी. नहीं, यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर जो ये बी वैक्स है, इट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट, while honey is the secondary product. ठीक है ना? तो प्लीज़ एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो जाता है, तो ये प्लीज़ आप याद रखेंगे कि एपीकल्चर है क्या? तो एपीकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ द हनी बीज टू ऑब्टेन बी वैक्स एंड हनी. ठीक है ना? बी वैक्स एंड हनी, वेयर बी वैक्स इज द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड द हनी इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट. कुछ हनी बीज की बात करते हैं हम लोग. तो सबसे पहले मैं हनी बी यहाँ पे ले रहा हूँ और उसको मैंने नाम दिया एपिस डॉर्सेटा. क्या नाम आया? एपिस डॉर्सेटा. ये पहला मैंने यहाँ पे लिया. तो एपिस डॉर्सेटा को इट इज कॉमनली नोन एज रॉक बी. क्यों बोलते हैं रॉक बी? आप देखते हैं कि वाटर टैंक पे छत्ते लगे हुए हैं, छत के ऊपर अगर कहीं पे छत्ते लगे हुए हैं, रॉक के ऊपर कहीं पे अगर हाइव्स लगे हुए हैं, तो वो कौन सी है? वो एपिस डॉर्सेटा होती है. ठीक है ना? ये मेनली अपने हाइव्स को कहाँ पे लगाती है? रॉक्स पे लगाती है, वॉल्स पे लगाती है, टैंक्स के वॉल पे लगाती है. तो हमने इसको नाम क्या दे दिया? एपिस डॉर्सेटा. क्या नाम दे दिया? एपिस डॉर्सेटा. पहली बात क्लियर हुई आपको यहाँ पे. दूसरा, यहाँ पर इट इज लार्जेस्ट हनी बी. जितनी भी हनी बीज हैं, इट इज द लार्जेस्ट वन. इट इज द लार्जेस्ट हनी बी. ठीक है ना? आप यहाँ पर इसमें जो इम्पोर्टेंट है क्या है? वी डू नॉट डोमेस्टिकेटेड. हम इनको डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं, हम इनको रियर नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये कैसे होते हैं? highly aggressive. They are highly aggressive, so we do not domesticate. ये highly aggressive होती है, इस वजह से हम इसको domesticate नहीं करते हैं. फिर से देख लीजिए, सबसे पहला मेंबर मैंने लिया यहाँ पर एपिस का एग्जाम्पल. क्या लिया मैंने? एपिस डॉर्सेटा. क्या नाम दिया? एपिस डॉर्सेटा, ऑल्सो नोन एज रॉक बी. ठीक है ना? सेकेंडली फर्स्ट ये हुआ. सेकेंडली इट इज द लार्जेस्ट हनी बी. Thirdly, we do not domesticate. We do not rear this species of honeybee. Why? Because they are highly aggressive. So this is all about the Apis dorsata. Second comes. I am writing here. The second is Apis indica. ठीक है ना? And look here, commonly it is known as monabee. ठीक है ना? And here it can be domesticated. इसको हम domesticate कर सकते हैं. So ये दूसरी आ गई यहाँ पर एपिस इंडिका. देखिए, NCERT ने यही वर्ड दिया हुआ है कि एपिस इंडिका को डोमेस्टिकेट किया जाता है.
ठीक है ना, ये तो आपको यही याद रखना है, इसी को याद रखना है। सो पहली एपिस डॉर्सेटा, दूसरी कौन सी आ गई, एपिस इंडिका, दूसरी कौन सी आ गई, एपिस इंडिका, ऑल्सो कॉल्ड एज मोनाबी, ऑल्सो नोन एज मोनाबी, इसको मोनाबी कहते हैं। एंड इट कैन बी डोमेस्टिकेट, इट कैन बी डोमेस्टिकेट, ठीक है ना, डोमेस्टिकेट, ठीक है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड द प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स। तो ये आपको मैंने यहाँ पर ये दो बताए, ये मैंने आपको यहाँ पे दो बताए। अब एक आती है यहाँ पर जिसको आप दो तीन और लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, जस्ट रिमेंबर एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, ठीक है ना। इट कैन बी ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड, कैन बी डोमेस्टिकेटेड, कैन बी डोमेस्टिकेटेड, इसको भी हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, एपिस मेलिफेरा को भी हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा, इट कैन बी ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड honey for same purpose, to obtain honey, to obtain honey and to obtain bee wax, to obtain bee wax. So this is introduction of apiculture. I am repeating here, what is apiculture? It is the rearing of the honey bees, it is the rearing of the honey bees to obtain what beta, to obtain honey, to obtain honey and bee wax, to obtain honey and bee wax, it is called apiculture. In this, bee wax is the primary product while the honey is the secondary product. ये प्लीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर हनी जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है, कैसा प्रोडक्ट है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जबकि जो बी वैक्स है वो कैसा प्रोडक्ट है, इट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ मेंबर हैं हमारे पास, सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर एपिस डॉर्सेटा, also known as rock bee, it is the largest honey bee and do not domesticated, इसको हम नहीं पालते हैं। क्यों नहीं पालते हैं? क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, हाईली एग्रेसिव। कैसा नेचर हुआ है यहाँ पर, हाईली एग्रेसिव नेचर होता है। दूसरा एपिस इंडिका, इसको हम कॉमनली नोन एज मोनाबी, commonly known as monabi, and it can be domesticated for honey and bee wax. Apis mellifera, it can also be domesticated to obtain honey and bee wax. जितने भी हनी बीज की हम बात कर रहे हैं, they are, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि they are good pollinators, they are good pollinators। ये देखिए यहाँ पर हनी बी और बी वैक्स तो उनका एडवांटेज है, लेकिन जितने भी जो भी हैं मेंबर्स यहाँ पे हनी बीज की बात कर रहे हैं, तो दे आर गुड पॉलिनेटर्स, दे आर गुड पॉलिनेटर्स। एंटोमोफिली आप पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे आप लोग, तो दे आर वेरी गुड पॉलिनेटर्स, ठीक है ना। पॉलिनेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी क्रॉप होगी, आप जानते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एपीकल्चर। So in next class we will discuss about the members of the this one honeybees, how the members are formed and how the honey is formed, ठीक है ना, who is responsible for the polymorphism, who is responsible for the bee wax, ठीक है ना। everything will be studied in our next lecture. For till then, okay, goodbye and thank you.